Okay, so cost center means that the unit for which the cost is being calculated. तो इसका मतलब क्या हुआ, से लोकेशन HR डिपार्टमेंट का कितना कॉस्ट पड़ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग द HR डिपार्टमेंट टू द कंपनी, the HR department becomes a cost center. Similarly, IT department becomes a cost center. Now, cost center is not only for departments, but it can be for an item of equipment also. So, this means कि एक पर्टिकुलर मशीन को रन करने के लिए हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी इनकर हो रही है, दैट विल ऑल्सो बी अ कॉस्ट सेंटर if you are calculating the cost in this manner. Okay, so as you can see, there's further explanation, the location, person or item of equipment for which cost is determined, and you're given the examples of some of the cost centers in an organization. Next term which we use in cost unit is cost accounting is cost unit. Now, unit is the unit of measurement in which you are calculating the cost. Okay, so like cost per kg of raw material. Okay, this will be a cost unit. Per kg is the unit of measurement, or cost per square meter, or labor cost per hour. So it is unit of product, service or time in terms of which cost may be ascertained or expressed. So there can be single cost units generally in case of manufacturing industries, or there is a composite cost unit इन केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज. तो जब आप पैसेंजर कॉस्ट पर किलोमीटर कैलकुलेट करते हो, इट इज अ कॉम्पोजिट कॉस्ट इन द सेंस कि इसमें कॉस्ट ऑफ जो भी फ्यूल है वो भी आ जाता है, डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट भी आ जाती है, टाइम के भी कॉस्ट आ जाती है, डिस्टेंस के हिसाब से आपको टोटल कॉस्ट पर पैसेंजर मिल जाती है. पर जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पर हम से पर टन ऑफ स्टील कितनी कॉस्ट है, पर टन ऑफ कोल कितनी कॉस्ट है, वो अलग अलग जो रॉ मटेरियल्स है उनके लिए अलग अलग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट होती है. सिमिलरली होटल्स में पर बेड के हिसाब से, पर रूम के हिसाब से एक कॉम्पोजिट कॉस्ट आपको दी जाती है. उसमें वो डिवाइड करके आपको नहीं बताते कि इलेक्ट्रिसिटी की इतनी कॉस्ट है, या टीवी की इतनी कॉस्ट है, या आपको जो सर्विस मिल रही है उसकी क्लीनिंग कितनी कॉस्ट है. दे गिव यू अ कॉम्पोजिट कॉस्ट विच इज जनरली ऑन द बेसिस ऑफ पर बेड, पर डे, एंड देन जो अलग अलग कैटेगरीज ऑफ रूम्स होती हैं उसके हिसाब से डिवाइड हो जाता है. सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट. Another set of related terms which we have used earlier also is cost control and cost reduction. Control, cost control, जो कंट्रोलिंग फंक्शन आपने मैनेजमेंट में करा था, comparison of actual cost with the budgeted cost is cost control. You're trying to align your actual cost with the budgeted cost. That is known as cost control. While cost reduction has again a literal meaning, you're trying to reduce the per unit cost of the product. That is cost reduction. तो जब कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो हम एक क्यूमुलेटिव अमाउंट की बात करते हैं. इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में टोटल कॉस्ट 1 लाख रुपीज आनी चाहिए. पर जब हम कॉस्ट रिडक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपए से 9 रुपए पे रिड्यूस करना है. फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट.
So when we talk about cost control, first we'll talk about the meaning. Savings in total cost, while cost reduction is savings in cost per unit. Retention of quality is not guaranteed in case of cost control, while in case of cost reduction it is guaranteed. Can you think of some example जहाँ पर कंट्रोल करने में कॉस्ट क्वालिटी में फॉल हुआ? Any product that comes to your mind? Practical example where when the firm tried to control the cost, the quality of the product suffered. Ma'am, like cars, we see in automotive sector when the manufacturers try to cost cut, and that results in like poorer दोबारा quality. दोबारा सुमित, लाउडली एंड स्लोली दोबारा बताओ बेटा. मैम जब मैन्युफैक्चरर्स जब गाड़ियां लेके आते हैं when they हाँ like जी. offer cheap quality materials हाँ. in trying to like reduce the cost, and that Yeah. results in poor quality. Yeah, so that can be a good example जहाँ पर मैन्युफैक्चरर बहुत बारी कोशिश करता है कि कम कॉस्ट पे आपको प्रोडक्ट या सेम कॉस्ट पे इंक्रीज ना करे ओवर द इयर्स. तो उस केस में वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करता है. नैनो चाइनीज फोन, इवन योर मैगी, initially it was for 10 rupees. When the manufacturer per packet, manufacturer tried to control, Nestle tried to control the cost to 10. तो उस केस में जो क्वांटिटी थी वो कम कर दी. तो ऐसे बहुत प्रोडक्ट्स में ये भी करते हैं मैन्युफैक्चरर कि जब कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो क्वांटिटी को कम कर देते हैं ताकि उनको कोई लॉस ना हो. ओके. बट जब हम कॉस्ट रिडक्शन करते हैं तब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता. जो कहीं पर वेस्टेज हो रही है, कहीं पे डुप्लीकेशन हो रही है काम की, हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं. सो कॉस्ट कंट्रोल इज टेम्पररी. आप थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल कर सकते हो, पर रिडक्शन जो होती है वो परमानेंट होती है. ओके. सो apart from this, you can see the other differences also. If there's any point that needs more explanation, you can ask. हाँ जी बोलो. Ma'am, ma'am, like Apple reduce the charger and earphones from the new phone. So, ma'am, it is a cost control or cost reduction? That would be जब उन्होंने चार्जर देना बंद कर दिया. Yes, ma'am. हाँ, तो वो बेटा फिर रिडक्शन हो गई उनके लिए. बट क्वालिटी ऑफ फोन में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ ना. मेन जो प्रोडक्ट वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो फोन है, और वैसे ये परमानेंट रिडक्शन हो गई कॉस्ट में. तो अब जो भी एक्सेसरीज चाहिए फोन के साथ वो कस्टमर पेमेंट बेसिस पे परचेज कर सकता है. Yes, ma'am. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? देयर आई थिंक yeah, these are the main differences between cost control and cost reduction. We come to the next type of classification of cost, which is on basis of production. नेचर ऑफ प्रोडक्शन. एक कॉस्टिंग होती है जॉब कॉस्टिंग और एक होती है प्रोसेस कॉस्टिंग. नाउ इफ आई टॉक अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ सेपरेट पेपर, जैसे कॉमर्स में बच्चे पढ़ते हैं वहां पर ये सब एस्पेक्ट्स प्रैक्टिकली भी सॉल्व होते हैं, पर आपके सिलेबस में दिस इज लिमिटेड टू थ्योरी ओनली. जॉब कॉस्टिंग इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट on basis of specific orders, specific jobs that the company receives. तो जैसे एक ऑर्डर आया कस्टमाइजेशन वाला, तो उस केस में आप कॉस्ट कैलकुलेट करते हो जॉब कॉस्टिंग के बेसिस पे. और जब स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन होती है स्टेजेस में, वो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है. आई विल गिव यू वन एग्जांपल.
जैसे मैन्युफैक्चरर ऑफ एयरप्लेन्स है, बोइंग है। जब बोइंग के पास एक ऑर्डर आता है तो वो जो कॉस्ट कैलकुलेट होती है वो जॉब कॉस्टिंग के हिसाब से होती है। पर अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग की बात करें तो वो जो प्रोडक्शन होती है वो फेजेस में होती है। उसको पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को हम अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। सो देयर द कॉस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ process costing. Similarly, if you are going to a shop to get a customized garment, that will be job costing. टेलर के पास आप जा रहे हो, कस्टमाइज्ड पीस ले रहे हो, जॉब कॉस्टिंग होगा। पर आप रेडीमेड शर्ट परचेज कर रहे हो, वहां पे कॉस्टिंग फिर कंपनी के लिए वो प्रोसेस कॉस्टिंग हो जाती है। सो अगेन इम्पॉर्टेंट comparison chart. So read the points and then tell me which point needs further explanation. इसमें दो स्लाइड्स में आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं। टेक 2 minutes, read the points and tell me which point needs further explanation. So from the meaning itself, you derive that customized production job costing is more suitable. Like your company needs an accounting software, तो वो सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी की नीड्स के हिसाब से फॉर्मुलेट होगा, वो जॉब कॉस्टिंग हो गई। पर अगर से किसी केमिकल की प्रोडक्शन हो रही है तो उसमें भी बहुत स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज हो जाएगी। एनी पॉइंट which is not clear? Can we move further? Yes. So moving to the next topic. This I think all of you are very clear with. We have studied in microeconomics also. On the basis of variability, what are the different types of cost? You have a fixed cost, you have variable cost, and you have semi-variable cost. Fixed cost, you can see there are two graphs. One is that the fixed cost remains same irrespective of the number of units produced. तो टोटलिटी में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपकी वो सेम रहती है, पर अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की बात करूं तो वो रिड्यूस हो रही है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। ऑन द अदर हैंड, variable cost per unit remains the same, but otherwise as the number of units produced increases, our total variable cost will also increase. Semi variable, half variable, some part variable. So like your landline phones, there is some rent plus the cost of usage. Your electricity bill also the same. Now obviously things have changed, but a landline cost of your cost of landline phone would be the best example, where a minimum rent is charged and above that whatever usage you are making पर मिनट बेसिस पे जो आप कॉल कर रहे हो, पर सेकंड बेसिस पे, उस बेसिस पर आपकी कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है। Then next type of cost, all this is theory, nothing we are doing practically here now in this unit.
So product cost and period cost. Let's have a look at the definition. Product cost is attributable to the product. These costs are associated with procurement of raw material, conversion of raw material to the finished goods. While period cost is the cost related to a particular time period. ओके तो उसमें आप कितनी प्रोडक्शन हुई है उससे कंसर्न नहीं हो, पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो. That is what period cost is. So you can first see the examples and then read the remaining points. Under the examples, cost of raw material is your product cost related to the production part, while salary is for a particular time period, rent is for a particular time period, and so on. So all your production manufacturing costs are product cost, while all your administrative indirect cost, selling and distribution cost will come under your period cost. Okay. सिमिलर थिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट आपने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में ही समझ लिया कि डायरेक्ट कॉस्ट होती है आपकी प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. उसके बाद जो भी ओवरहेड्स आप स्टडी करते हो दोज आर योर इनडायरेक्ट कॉस्ट. सो फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स and your office and admin overheads, they collectively make the indirect cost of production. So direct cost can be traceable to the cost objective, while indirect costs are allocated on proportional basis to the product produced. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी पूछो बेटा. मैम ये जो आपने भी लास्ट लाइन में बोला ये समझा दीजिए, ट्रेसेबल एंड एलोकेटेड. ओके ट्रेसेबल में आप जैसे रॉ मटेरियल कैलकुलेट करते थे तो पर केजी के हिसाब से आप कैलकुलेट करते थे. आपको कॉस्ट दी होती थी 5 रुपीज पर केजी, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 20,000. ठीक है, उसमें आप मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट रॉ मटेरियल की कैलकुलेट कर लेते थे. या ऑपोजिट भी था केस, व्हेन यू वर गिवन दी टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख, यूनिट्स प्रोड्यूस 20,000, तो आप कॉस्ट पर यूनिट के कॉलम में कैलकुलेट कर लेते थे डिवाइड करके, ₹5 पर यूनिट आ जाता था. यस मैम. पर जब भी ओवरहेड्स करते थे तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करते, वो टोटलिटी में ही आपकी चार्ज हो जाती है प्रोडक्ट पे. This we have done mother practically also. यस मैम. ओके मैम. नहीं Yes, now वो you can प्रैक्टिकल relate नहीं it यार. to, yeah, relate the theory to what practically we have solved. ओके मैम. You will remember that in the long run. Okay, then is shutdown and sunk cost. Sunk cost होती है आपकी historical cost, जो आपके आगे के किसी डिसीजन को इम्पैक्ट नहीं करेगी. So once you have purchased a piece of land, चाहे अब उस पे आप बिल्डिंग बना के बेचो, चाहे आप उसको आगे रेंट आउट कर दो बिल्डिंग को, चाहे उसको सेल करो, दैट कॉस्ट ऑफ लैंड, परचेज कॉस्ट ऑफ लैंड इज अ sunk cost, because now that is not your consideration in decision making. फॉर एग्जाम्पल मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी पीस ऑफ लैंड पे और मुझे 2 ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, या तो इस बिल्डिंग को सेल कर दो या इस बिल्डिंग को रेंटल बेसिस पे दे दो. तो जब आप डिसीजन लोगे तो आप दोनों में से रिटर्न कैलकुलेट करोगे. जो लैंड का कॉस्ट था वो पास्ट में खर्चा हो चुका है, दैट बिकम्स एन irrelevant cost in the decision making process. So such costs are known as sunk cost.
ऑन द अदर हैंड शट डाउन कॉस्ट क्या होता है, से कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको लगता है, जैसे लॉकडाउन हुआ, अब आपको लगता है कि टेम्पररी अभी 3-4 महीने के लिए तो कोई प्रोडक्शन नहीं होनी, तो उतने टाइम पीरियड के लिए फैक्ट्री को क्लोज कर देते हैं। तो उस क्लोजिंग की वजह से जो भी कॉस्ट आएगी, दैट इज योर शट डाउन कॉस्ट। आपने पूरे ईयर का रेंट पे करा हुआ है और 4 महीने फैक्ट्री क्लोज रहती है, तो कुछ भी इनकम आपको रिसीव नहीं हो रही, ये रेंट ऑफ 4 मंथ्स आपका क्या हो गया, शट डाउन कॉस्ट। इंश्योरेंस ऑफ 4 मंथ्स, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन फॉर 4 मंथ्स is your cost of shutting down the business due to some temporary difficulties. Okay, what sunk cost रिपीट करूं? sunk cost क्या है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट नहीं कर रही है। अब इसमें आप this point please refer to Manjeet. Just let's read this point. Say these are the costs which have been created by a decision made in the past. तो past में आपके पास सरप्लस पैसा था, आपने एक पीस ऑफ लैंड परचेज कर लिया। अब 10 साल बाद आप उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाते हो और आप सोचते हो कि अब या तो इस बिल्डिंग को रेंट पे दे दे या फिर इसको सेल आउट कर दे। तो उस टाइम पर जब आप डिसीजन ले रहे हो 10 साल बाद, तब आप दोनों डिसीजंस का नेट रिटर्न कैलकुलेट करोगे। उसमें पीस ऑफ लैंड की जो कॉस्ट है, चाहे डिसीजन रेंट का हो चाहे सेल का, लैंड की जो परचेज कॉस्ट है वो आप इनकर कर चुके हो, उसकी वजह से आपके करंट डिसीजन पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो ऐसी कॉस्ट जो पास्ट में हो चुकी है इनकर एंड विच डू नॉट इम्पैक्ट द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आर नोन एज सunk कॉस्ट। ओके।